ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਦਨਦੀਪ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸੂਬੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੀਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੀਜੀਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਵਧਾਂ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੈਡਰ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਲੈਡਰ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਨੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਆਓ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਸ਼ कुमार ਦਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ आपका धन्यवाद। बहुत बहुत। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि ज़्यादा हिंदी बोलने का इन्हों आदत है, लेकिन विच पंजाबी भी बोलते हैं अच्छी, मैनू पता है। तो कोशिश करना गल समझण दी, क्योंकि कोई हिंदी कोई मुश्किल नहीं है, सारे पंजाबी जानने वाले हिंदी भी जानते हैं। और तुहानूं ये आ कि अंग्रेज़ी विच नहीं, हिंदी सरल भाषा दे विच तुहानूं दस्सणगे रोगां बारे। तो सब तो पहला डॉक्टर साहब मैं, क्योंकि अजकल जिहड़ा एक तो हार्ट का आम तौर पर हुंदा है कि दिल का रोग है जी, कोई हार्ट अटैक होया, बंदा मर गया। लेकिन उस तो भी खतरनाक बीमारी है पेशाब नाल संबंधित रोगों को लैके। खास करके अजकल प्रोस्टेट तो बहुत लोग डरते हैं हिंदुस्तान दे विच। शायद गदूद जिन्हों असीं कहने हैं पंजाबी दे विच, हिंदी च भी गदूद बोलते हैं। तो पहला भारत दे विच या पंजाब दे विच गदूदां बारे लोग ज़्यादा जानते नहीं सी, पर अजकल जे असीं तुहाडे जाके जदों तुहाडी ओपीडी जाने चंडीगढ़ च, तो उत्थे गदूदां दे संबंधी इलाज कराउण वाली इंनी भीड़ वेखदे हां असीं। इहदा कारण की है? गदूदा जो है वो प्रोस्टेट को कहते हैं। वो एक ग्लैंड है। ये ग्लैंड पुरुष का ग्लैंड होती है, मर्दों में होती है, जनानी में नहीं होती है। और ये ग्लैंड बचपन में मटर के दाने के जैसी होती है, और ये जरूरी भी है ग्लैंड। ये ग्लैंड न हो तो मेल वाली काम न होगी। जैसे कि इससे स्पर्म जो होती है, जिससे बच्चा होती है, बच्चा पैदा करने में सहायता होती है। फीमेल में, जनानी में ओवा होती है, मेल में स्पर्म होती है जिसे शुक्राणु कहते हैं। दोनों मिलने से बच्चा होती है। तो ये शुक्राणु की जो हेल्थ होती है, स्वास्थ्य होती है, उसको मेंटेन करती है। जो
प्रोस्टेट का सेक्रेशन जो होती है, सेक्रेशन में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं प्रोस्टेट से, जो कि उसकी हेल्थ को मेंटेन करती है। यदि प्रोस्टेट नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि उसमें जो सेक्रेशन होती है वो सेक्रेशन नहीं होंगे तो स्पर्म जिंदा नहीं रहेगी। तो ये मेल का सेक्स ऑर्गन का हिस्सा है प्रोस्टेट ग्लैंड। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ती जाती है। ये पेशाब के थैले के निचले हिस्से में होती है। पेशाब के रास्ते पे प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई, जैसे सड़क पे कोई गाड़ी रुक गई, अब सड़क से दूसरी गाड़ी कैसे निकलेगी, वैसे ही पेशाब के रास्ते में यदि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई है तो पेशाब कैसे निकलेगी, तो पेशाब की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। बार बार पेशाब होना, रुक रुक के पेशाब होना, पेशाब के में खून आ जाना, कभी कभी प्रोस्टेट में कैंसर की भी बीमारी हो जाती है। जब कैंसर की बीमारी होती है तो ये और भी खतरनाक हो जाती है। तो पेशाब की कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत यूरोलॉजिस्ट को दिखानी पड़ चाहिए। यदि हम पेशाब की दिक्कत को नेग्लेक्ट करते जाएं तो धीरे धीरे पेशाब की थैली भी फैल हो सकती है। इसको तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं प्रोस्टेट ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ नहीं करना चाहिए? वीडियो देखने से पहले ये देखना चाहिए कि आखिर वो वीडियो कौन बनाया है। कोई क्वालिफाइड डॉक्टर बनाया है या ऐसे ही किसी ने भी बना दिया है। आजकल ऐसी वैसी डिग्री लेके बहुत सारे वीडियो बनते रहते हैं, तो कुछ भी लिख देते हैं कि चलो उनकी वीडियो तो चल गई। लेकिन कोई भी क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट की वीडियो देखनी चाहिए। कोई भी क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट है उनकी वीडियो देखनी चाहिए। बहुत तरह की रिपोर्ट आती है वो गलत होती है। यदि कोई पेशाब की दिक्कत भी हो तो यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही ऑन काउंटर दवा नहीं लेनी चाहिए। तो हम पहले डिस्कस करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण पेशाब की थैली का फेल होना। थोड़ा सा मैं और इस पे जानना चाहता हूँ, प्रोस्टेट पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कैंसर का नाम लिया कि इसमें कैंसर भी हो जाती है। अगर कैंसर हो जाए तो क्या इसका इलाज है संभव? प्रोस्टेट के कैंसर का स्टेज होती है, स्टेज 1 और 2। स्टेज 1 और 2 में पेशेंट आती है तो 90% से ज़्यादा पेशेंट क्योर हो जाती है। जिंदगी भर में फिर उसकी बीमारी होने की चांस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होती है। 90 से 95% पेशेंट रोबोटिक सर्जरी नाल क्योर हो जाती है। पता कैसे चलेगा पेशेंट को कि मुझे कैंसर हो पहले गया है? तो उसकी सिम्टम्स होगी। पेशाब की यदि कोई भी दिक्कत होती है तो उनको किसी भी यूरोलॉजिस्ट से टेस्ट कराए, और एक पीएसए टेस्ट होती है जिसको प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं। पेशाब की दिक्कत हो और पीएसए बढ़ी हुई है तो कैंसर होने की शक हो जाती है। ये जरूरी नहीं है कि कैंसर ही होगा, कभी कभी इन्फेक्शन में भी पीएसए बढ़ जाती है, ठीक है। तो भी रूल आउट करना जरूरी है कि कोई छिपा हुआ कैंसर तो नहीं है। एक पीएसए में पेट स्कैन होती है। पीएसए में पेट स्कैन से देखते हैं कि किस एरिया में कैंसर है या नहीं है, ये कैंसर कहीं फैली हुई तो नहीं है। यदि कैंसर फैली नहीं हुई है, बायोप्सी करते हैं, कंफर्म करते हैं। सीधे सर्जरी तो नहीं कर सकते, पहले तो कंफर्म करनी होगी। बहुत लोग कहते हैं यार ये बीमारी फैल जाती है बायोप्सी करने से। ऐसे झूठी विश्वास है, ये ठीक नहीं है। बहुत लोग में अभी भी ये विश्वास है कि बायोप्सी करने से बीमारी फैल जाती है। ऐसा नहीं होता है। बायोप्सी के बिना इलाज करना जायज नहीं है। कभी कभी रेयरली करनी पड़ती है कि बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है और पेशेंट बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, तो दवा शुरू कर देते हैं, कंडीशन थोड़ा इम्प्रूव होता है, फिर बायोप्सी कर लेते हैं।
तो बायोप्सी में जब डायग्नोसिस कंफर्म हो गई, स्टेज 1 और स्टेज 2 डिजीज है, रोबोटिक सर्जरी करके इसे ठीक किया क्योर जा कर सकता है। सकते। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है कि तुरंत सर्जरी करनी है। बहुत जगह ये होती है ना कि तुरंत सर्जरी करनी है, ऐसा नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर में कोई भी आदमी बायोप्सी के बाद 4 से 6 हफ्ता वेट कर सकते हैं। इवन दवा और इंजेक्शन लगा के 3 महीने 6 महीने भी सर्जरी से पहले इंतजार कर सकते हैं। तो रस करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि ये कैंसर तुरंत जान ले लेगा, ऐसी बात नहीं है। दूसरी कैंसर जो होती है, जैसे ब्लैडर कैंसर होती है और अंडकोश टेस्टिस की कैंसर होती है, ये ज्यादा खतरनाक होती है। तो ये जो ब्लैडर की आप बात कर रहे हैं कि ब्लैडर फेल हो जाता है, जैसे हार्ट फेल होता है, तो ये कैसे क्यों फेल हो जाता है? अगर अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या ये इसका इलाज भी है, ठीक भी हो सकता है? ऐसा है, ब्लैडर फेल होने के बहुत सारे कारण हैं। एक कारण जो है वो प्रोस्टेट भी है। प्रोस्टेट की रुकावट के कारण पेशाब की थैली जो है वो धीरे 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 फैलती चली जाती है। और जैसे स्प्रिंग होती है, अब थोड़ा खींचा छोड़ दिया वापस आ गया, थोड़ा खींचा छोड़ दिया वापस आ गया। यदि स्प्रिंग को ऐसे खींच देंगे तो वापस नहीं आएगी। तो पेशाब की थैली में जो मसल होती है, ब्लैडर में मसल होती है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो पेशाब निकलती है। जब ये थैली स्ट्रेच हो जाती है, बहुत ज्यादा इतनी बड़ी हो गई, कैथेटर डाला तो 1 लीटर पेशाब आ गई, 2 लीटर पेशाब आ गई, 1.5 लीटर पेशाब आ गई तुरंत। इसका मतलब ये ब्लैडर बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गई है, फैल गई है, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है। जैसे हार्ट फेलियर होती है, हार्ट फेलियर में भी वॉल्व की प्रॉब्लम होती है, तो हार्ट पे लोड बढ़ता है, हार्ट फैल जाती है, तो पंप करना कम हो जाती है, कहते हैं हार्ट फेल हो गया। ठीक है, वैसे ही ब्लैडर भी फेल होती है। इसमें तुरंत सर्जरी नहीं करानी चाहिए। जब भी ब्लैडर काम करना बंद कर देता है रुकावट की वजह से, तो उसको रेस्ट देनी चाहिए। 6 हफ्ते कैथेटर डाल के हम छोड़ देते हैं। ब्लैडर को रेस्ट होने से फिर देखते हैं कि उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता आई या नहीं आई। बहुत समय ऐसा होता है कि रेस्ट से इम्प्रूव हो जाती है, और प्रोस्टेट की यदि रुकावट है तो उसको ऑपरेट कर देते हैं, तो वो ब्लैडर काम करने लगता है। कभी कभी होता है कि ब्लैडर फेल होगी, पूरी फेल होगी, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करती, यूरिन निकालती ही नहीं है। ऐसे कंडीशन में कुछ दवा होते हैं, वो भी ट्राई करते हैं कि उस दवा के कारण कुछ पेशाब के थैली में ताकत आ जाए। कभी कभी कोई चीज काम नहीं करती है और पेशेंट को हर 6 घंटे पे नली डाल के पेशाब खाली करना पड़ता है, जिसको CIC कहते हैं। नली डाला, पेशाब खाली कर दी, 6 घंटे तक फिर जमा हुआ यूरिन, फिर नली डाली, फिर पेशाब खाली कर दी। इसको क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन कहते हैं। तो ये जानना चाहिए कि किसी को पेशाब की बहुत समय से दिक्कत है, प्रोस्टेट की बहुत समय से दिक्कत है, थोड़ी यूरिन आती है, फिर वो नेग्लेक्ट कर देते, चलो थोड़ी आ गई रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर जाके पेशाब कर लेते हैं। ऐसे कंडीशन में पेशाब पूरी खाली हुई नहीं, पेशाब की थैली बढ़ते चली गई। और अल्ट्रासाउंड में देखेंगे तो पोस्ट वॉइड रेजिड्यू PVR वो बड़ी होती है, मतलब पेशाब करने के बावजूद मसाने नाल बहुत सारी यूरिन पड़ी हुई है। जब पेशाब के थैली में बहुत यूरिन पड़ी हुई है तो बार बार इन्फेक्शन होती है, और किडनी में भी सूजन आ जाती है, और किडनी के खराब होने का भी चांस बढ़ जाता है। तो ये पेशाब के थैली के फेल होने का एक कारण है प्रोस्टेट। दूसरी और भी कारण होती है, जिसे नर्व जो होती है, पेशाब की थैली की जो नर्व होती है वो कमजोर हो गई। जैसे डायबिटीज में लंबे समय से डायबिटीज है
तो न्यूरोपैथी हो जाती है, जैसे किडनी इफेक्ट होती है, आँख की रोशनी इफेक्ट होती है, उसी तरह पेशाब के थैली की नर्व इफेक्ट हो जाती है। जब पेशाब के थैली की नर्व इफेक्ट हो गई तो करंट जाएगी नहीं, पेशाब की थैली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। तो ये भी वजह है। जैसे डायबिटीज में नर्व इफेक्ट के कारण पेशाब की थैली काम नहीं करती है, वैसे ही डायबिटीज में पेनिस की नर्व इफेक्ट हो जाती है और पेनिस की मसल जो होती है वो काम नहीं करती है। तो डायबिटीज के कारण भी इम्पोर्टेंस हो जाती है, सेक्स की प्रॉब्लम हो जाती है। और डायबिटीज के कारण जो सेक्स की प्रॉब्लम होती है वो दवा नाल भी कभी कभी काम नहीं करती है, तो इम्प्लांट डालनी पड़ती है, पेनिस में इम्प्लांट डालनी पड़ती है, जिस रॉड डालनी पड़ती है जिससे कि नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ वो यूटिलाइज कर पाए। तो नर्व के प्रॉब्लम के कारण ब्लैडर फेल हो सकती है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के कारण ब्लैडर फेल हो सकती है, और तरह की नर्व की प्रॉब्लम होती है उसके कारण भी ब्लैडर फेल होती है। और कभी कभी डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद बहुत देर तक कैथेटर डाला ही नहीं, ब्लैडर बहुत डिस्टेंड हो गई, या जो बच्चे का जन्म के समय जो ट्रॉमा हुआ, पेशाब के रास्ते में सूजन हो गई और पेशाब में दिक्कत हो रही है और पेशाब वो कर नहीं पा रहे हैं, पेशाब की थैली फैलती चली गई। जब पेशाब रुक जाती है डिलीवरी के बाद, वैसे भी कंडीशन में कैथेटर डाल के कुछ दिनों के लिए रेस्ट देने की जरूरत है, नहीं तो थोड़ी थोड़ी पेशाब आती रहती है, ब्लैडर का थैला डिस्टेंड होता चला जाता है और पेशाब की थैली फेल हो जाती है। कभी कभी सर्जरी के लिए गया, हर्निया की सर्जरी के लिए गया, स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया, रीढ़ की हड्डी में एनेस्थेसिया दिया, तो ब्लैडर की नर्व भी काम नहीं करती है कुछ दिनों के लिए, तो ब्लैडर में यूरिन जमा होता गया और ब्लैडर फिर फैल गई, थैली फिर फैल गई, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है, तो भी ब्लैडर की थैली फैल होना कहते हैं, इसे भी ब्लैडर की थैली का फैल होना कहते हैं। तो ये सारे चीजें पेशाब की थैली को रेस्ट देने की जरूरत है। तुरंत कोई सर्जरी करने से नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। तो ये जो हर्निया की तुसी गल कर रहे हो, हर्निया मैं संक्षेप थोड़ा सा चाहूँगा इस पे आप हमें बताएं कि हर्निया भी उतनी खतरनाक है? देखिए, मोस्टली तो हर्निया खतरनाक नहीं होती है, जो बाहर निकलती है अंदर चली जाती है वो खतरनाक नहीं होती है, लेकिन जो हर्निया बाहर निकल गई है अंदर वापस जा नहीं रही है, तब शुरू होता है कि ये बेहतर है जल्दी से जल्द इसका ऑपरेशन करा लें। नहीं तो कभी कभी हर्निया में आंत भी आ जाती है, वो दब जाती है और वो गैंग्रीन हो जाती है, सड़ जाती है आंत, जो कि जान के लिए खतरनाक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, अजकल मैं देखिया कि जिवें मैं पहला गल कर रहा सी, यूट्यूब ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਯੁਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ, ਵੀਕਨੈਸ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਾ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੋ ਵਪਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। युवाओं में जो मर्दानगी की प्रॉब्लम है, सेक्स की जो प्रॉब्लम है, नपुंसकता की जो प्रॉब्लम है, उसके बहुत सारे कारण हो रहे हैं। एक तो अल्कोहल का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्मोकिंग भी हो रही है ज़्यादा, खान पान भी आ गई है, पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा, फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। कुछ जिम जाने वाले कुछ कौन सी प्रोटीन ले रहे हैं, कौन सा हार्मोन ले रहे हैं, कौन सा दवा ले रहे हैं, वो भी मर्दानी पे इफेक्ट करती है। तो स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सरसाइज रेगुलर नहीं होना और कुछ खराब खान पान, जैसे जिम में क्या प्रोटीन ले रहे हो उसकी पता नहीं है, कुछ दवा लेते हैं मसल बनाने के लिए, वो
और कुछ ड्रग भी लेना भी काफी कॉमन हो गया है युवाओं में। काम का स्ट्रेस कि हमारी नौकरी कैसे चलेगी, ठीक है, हमारी इनकम कहाँ से आएगी, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। साथ में सोने का समय नहीं रह पाना, दिन भर काम करते हैं, रात में काम करते हैं, कभी दिन में सोते हैं, कभी रात में सोते हैं, लाइफ स्टाइल इरेगुलर हो गया, कुछ नियम कानून कुछ जिंदगी में रही नहीं। साथ ही साथ आजकल जो है पोर्नोग्राफी, सबके हाथ में मोबाइल है, सब देखते हैं कि अरे इसमें तो ये दिखाया जा रहा है, इसमें ये दिखाया जा रहा है, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि ऐसी होनी चाहिए लड़की, उसके ऐसे होने चाहिए सारा चीज। तो दिमाग में जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत रिलीज होते हैं, तो वो केमिकल्स क्या करते हैं, आपके एक्साइटेशन की लिमिट को अपर सेट कर देते हैं। तो नॉर्मल जो आपकी जो सेक्स की फीलिंग होनी चाहिए, नॉर्मल अर्ज होनी चाहिए, वो रहती नहीं है। वो केमिकल्स के कारण होता है, डोपामिन वगैरह होते हैं जो काफ़ी लेवल सेट कर जाते हैं बहुत ज़्यादा। उस लेवल तक नॉर्मल अपने घर में जब एक्साइटमेंट होती नहीं है तो फिर कहाँ से होगी ओके। सेक्स। तो एक कारण नहीं है, दूसरी कारण है खाने में फैट का चीज़ ज़्यादा होना, मीट, मटन, फैट, पनीर, चीज, बर्गर, ये ज़्यादा होना है। ये फैट वाली चीज उस अर्ज को कम करती है। खून में कोलेस्ट्रॉल, लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है, पेनिस में खून की नलिश नैरो हो जाती है, क्योंकि इरेक्शन तभी होती है, पेनिस में तनाव तभी आती है जब पेनिस में ब्लड फ्लो होती है। जब ब्लड फ्लो ही नहीं होगी तो क्या होगा, तनाव आएगी नहीं। तो ये भी एक वजह है। तो डॉपलर करके कभी कभी देखते हैं कि ब्लड, पेनिस में ब्लड फ्लो ही नहीं हो रही है। यंग डायबिटीज, आजकल कम एज में ब्लड शुगर ज़्यादा रहने लगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहने लगा। ब्लड शुगर ज़्यादा होगी तो नर्व खराब हो जाती है, पेनिस की नर्व, नर्व खराब हो गई तो जैसे स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब ऑन करते हैं तो तार के द्वारा करंट जाती है, तो पेनिस में करंट जो आती है वो नर्व के थ्रू आती है, तो नर्व ही खराब हो गई। आप स्विच कितना भी ऑन करेंगे इरेक्शन नहीं होगी। तो नपुंसकता के एक दो कारण नहीं, बहुत तरह के कारण हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसे कोई पेशेंट आते हैं तो क्या आप एंटरटेन करते हो उनको, आप देखते हो? देखिए, हमारा इसका ट्रीटमेंट ही यूरोलॉजी में होता है, बाकी दूसरे जगह जो भी कहते हैं वो सारा फॉल्स है, गलत है। क्योंकि इस चीज का ट्रीटमेंट जो होता है, एनाटोमी, पेनिस की एनाटोमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सर्जरी, सर्जरी की भी जब जरूरत पड़ती है, पेनाइल इम्प्लांट की जरूरत पड़ती है, जब दवा नहीं काम करती है तो यंग लोग में पेनाइल इम्प्लांट की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। क्योंकि पेनाइल इम्प्लांट के बाद आप हमेशा तैयार हैं, कभी भी रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है, दिन में 10 बार भी बना सकते हैं। इसमें पार्टनर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन दूसरी जो चीज़ है, इंजेक्शन आप डेली इंजेक्शन या यूथ में नहीं लगा सकते। इंजेक्शन भी एक इलाज का कारण है, तरीका है, लेकिन डेली इंजेक्शन नहीं लगा सकते। आप मंथ में एक बार चाहे 15 दिन में एक बार चाहे तो पेनिस में इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन डेली नहीं लगा सकते। डेली लगाने के बाद यदि कुछ दिन के बाद उसका भी रेस्पॉन्स खत्म हो जाएगा, फिर पेनाइल इम्प्लांट जो होती है, पेनिस में जो रोड डाल सकते वो नहीं डाल सकते। तो युवाओं में बेस्ट है मेडिसिन से काम चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इम्प्लांट। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं और ये जो बातें हैं सुनने वालों को अवश्य इसका लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद। तो डॉक्टर संतोष ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ, ਐਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਫਸੋ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।